So hello everyone, today we will be discussing model test paper of calculus, and this is applicable for all the universities. Okay, so in this question paper, test paper, you can say there are four questions. Total maximum marks is 75 and you have to attempt all of them which are of equal marks. So let's discuss. Question number 1 has three parts. First part is find a value for constant k that makes the function continuous everywhere. Next, we have to show the limit x tends to 0, x sine 1 by x 0. And B part says we have to prove this, okay, the equation. And next, C part is the question for partial differentiation. So let's begin with the solution. You can see here in the first question, we have to find the value of the constant k. Constant k की वैल्यू पता करनी है और दे रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर. ठीक है, तो फंक्शन 1 पे अब कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू the value of the function at that point. So by this funda we can find out the value of k. Okay, and excuse me. Similarly, in case of the second part, we have to just find the limit. So limit is x tends to 0 and sine of 1 by x. So we separate them by limit funda. So in first case, when limit x tends to 0, we have x, then after putting the limit it will be 0 and the whole answer will become 0, right? And sine 1 by x, we take it as alpha, and we know that it is less than or equal to 1. Yeah, so ये less than होगा या फिर equal होगा 1 के जब आप इसको हम put करते हैं तो. Am I right? 1 by 0, sine 1 by 0. So that will be sine 1 infinity, and which will be less than or equal to 1. Okay, next question we have given cos inverse y by b log of x y by n, and we have to prove it. So you can see here we are given with an expression, and the thing we have to prove it seems like what? nth डेरिवेटिव में बात हो रही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी हमारे पास लेबेंस थ्योरम है जो हमारी हेल्प करती है चीज़ों को क्लैरिफाई इजी करने में, सॉर्ट आउट करने में, राइट? सो हेयर ऑल्सो वी विल बी यूजिंग लेबेंस थ्योरम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सेटल डाउन करेंगे. y इक्वल टू बी कॉस n log ऑफ x. देखो log x बाय 1 n है और उसकी पावर n है, तो आपको पता ही है जब वो डिवाइड में है log, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log a अपॉन में b कैन बी रिटन एज log a माइनस log b. सो वी विल सेपरेट इट आउट, राइट? और जो पावर है वो नीचे आ गई. तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम इसका. फर्स्ट डेरिवेटिव y1 हमने निकाला, माइनस का b हो जाएगा साइन n log x minus log n into n by x. Then we will be multiplying the whole equation by x. Multiplying नहीं, you can say जो x है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन सॉर्ट आउट हुई. Now using the equation 1 we get this x square into y2 plus x y1 plus n square y equal to 0. Now we will be differentiating it n times by Leibniz theorem. So by Leibniz theorem, when we will do it, we will get this equation. X square, we are differentiating it n times. n times differentiate किया, so y of n plus 2 plus nc1 फॉर्मूला मालूम है, फिर 2x आ गया, फिर y of n plus 1, फिर nc2, then we are left with only 2, then yn. Similarly we will be sorting it, right? So and hence it will be proved. Very simple.
Now C part of question number 1, we are giving with the value of u, and we have to prove, right, del square u into del x into del y. So it's obviously the question of partial differentiation. So we will be finding the value. सिंपल है, u की वैल्यू दे रखी है और हम स्टार्ट करेंगे पहले del u बाय del y निकालेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, मतलब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स जो x है वो टर्म रहेगा कांस्टेंट एंड बाकी जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है बिल्कुल वैसे ही चलेगा यहाँ पे. सिमिलरली जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे y रहेगा वेरिएबल कांस्टेंट एंड रेस्ट डिफ्रेंशिएशन एज इट इज. फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, देन वी विल बी डिफ्रेंशिएटिंग अगेन एंड वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू, और जो वैल्यू होगी वो हमारे बराबर आ जाएगी जो हमें वैल्यू चाहिए थी और प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, रो 1 रो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड हमें प्रूफ करना है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर. 6 मार्क क्वेश्चन इट इज. देन बी पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व and y square equal to x minus 1 into x minus 2 का whole square. This is the equation of the curve. And C part we have to trace the curve. Okay. So C फर्स्ट पार्ट में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, x दे रखी थी वैल्यू, उसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया थीटा के रेस्पेक्ट में, a sin थीटा आ गया. फिर y का ऐसे ही हमने करा डिफ्रेंसिएशन, राइट. अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर्मूला क्या होता है उसका, थीटा के एट थीटा वैल्यू पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है. तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एंड जो न्यूमरेटर की पावर होती है 3/2, नीचे एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स. सो थीटा में जो हमने वैल्यू निकाली वो हम एज इट इज पुट करेंगे एंड सॉर्ट आउट जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a साइन थीटा बाई 2. तो ये हमारे पास आ गई रो 1 की वैल्यू. सिमिलरली रो 2 की वैल्यू हो जाएगी 4a cos थीटा बाई 2. दोनों को ऐड करेंगे 16a स्क्वायर आ जाएगा. प्रॉब्लम सॉल्व. बी पार्ट में हमें निकालना है नेचर, पोजीशन निकालनी है और डबल पॉइंट वगैरह. ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, क्या करना है, सबसे पहले fx निकालना है. fx यू अंडरस्टैंड इट बाय, मतलब आपको इस जो इक्वेशन है आपको दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो एफ एक्स निकालना है और एफ वाई निकालना है और फिर एफ एक्स वाई निकालना है. मतलब ये कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है उसको आप स्प्लिट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट पार्शली करेंगे, राइट. देन एफ वाई निकालेंगे, जो आप फर्दर करेंगे y तो वो आ जाएगा आपका 2y एंड एफ एक्स वाई जब आप करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी 0. ठीक है, तो आपको ये सारा निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पता करने के लिए एफ एक्स को 0 पुट करके आना है. एफ एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी 2 और 4/3. एफ वाई हो जाए हमारा 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 डेफिनेटली. तो दो पॉसिबल डबल पॉइंट्स आ गए, जिसमें से जो 2,0 है आप दोनों पॉइंट्स पुट करके देखेंगे इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जो 2,0 है वो नॉट है. क्यों, क्योंकि जब आप इसको देखो एफ स्क्वायर एक्स वाई माइनस एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई में पुट करेंगे तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और जब ग्रेटर देन 0 आ रही है उसकी वैल्यू इट मीन्स वो नॉट है. तो जब आप इसको डिटेल में इस कंसेप्ट को समझेंगे ना यू विल गेट टू नो ओके कि वो ग्रेटर देन 0 है देन इट इज़ नॉट. नॉट कब होता है, कस्प कब होता है, सिंगुलर पॉइंट कब होता है, डबल पॉइंट कब होता है. So for that you have to clear the whole concept. Okay. Next देखिए, I hope यहाँ तक अंडरस्टूड है. नेक्स्ट ट्रेसिंग करनी है कर्व की ट्रेसिंग करने के लिए भी हमारे पास 7 पॉइंट होते हैं. सो RS मैंने बनाया था सिमेट्रिक, ओरिजिन, आइसेंटॉप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
रीजन एंड एस फॉर स्पेशल पॉइंट, राइट। तो हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले सिमेट्रिक देखा हमने, सिमेट्रिक देखने के भी दो केस हैं कि एक्स एक्सिस के कब है, वाई एक्सिस के कब है, हम पहले वो चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, देन सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, देन हम dy बाई डी एक्स करके हम निकाल लेंगे स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। ये सब बातें चेक करने के बाद ये आप लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो आई मीन इक्वेशन को, ठीक है। सो ये दो वीडियोस हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी कंसेप्ट, ठीक है, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा देन ओनली। देखिए नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है, शो दैट x ग्रेटर देन tan इनवर्स x x 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0। सो ये जो सोल्यूशन है, देखो इसमें आपको फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, x माइनस tan इनवर्स x कर लो वेयर x इज ग्रेटर देन 0, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करो और फिर पता करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके लिए आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो एफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, दैट वी नो, और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट से बड़ी होती है। सिमिलरली जी एक्स पे भी आप चेक कर लो, जब दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये आपका कंबाइन करके प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, next find the Maclaurin series expansion of the function sin x, right? So we have to find the Maclaurin series। देखिए Maclaurin series find out करनी है, कुछ नहीं करना, sin x है फंक्शन, अब f n x की फॉर्म में उसे लिखना है, तो sin x प्लस एन पाई बाई 2, राइट। देन अब जो आर एन है वो है आपका x रेज टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल एफ एन थीटा x। Now Rn tends to 0 as n tends to infinity. So therefore fn0 will be sin n pi by 2. Simple. तो अब f0 will be 0 and first derivative निकालोगे 1, double derivative 0, triple derivative -1। तो इस फॉर्म में मैक्लॉरिन थ्योरम आपको पता है क्या होती है, f0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0। बस सिंपल है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, so next by considering the function x minus 2 log x in 1 comma 2, we have to show that the equation x log x equal to 2 minus x is satisfied for at least one value। तो जब भी at least one value वाला क्वेश्चन आए तो समझ लेना थ्योरम लग रही है। कौन सी थ्योरम लग रही है, रोल्स थ्योरम लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लग रही है हमारी रोल्स थ्योरम। सिंपल है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही आपका प्रूफ हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले करना है लैग्रेंज को प्रूफ करना है। सेकंड वी हैव टू डू द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करना है। तो वही रोल्स थ्योरम की दो कंडीशन फुलफिल करते ही, पहले तो ये थ्योरम कहती क्या है, एक तो ये थ्योरम रोल्स थ्योरम की दो कंडीशंस को फुलफिल करती है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, राइट, क्लियर है। अब देखो, अब डायग्रामेटिकली यू कैन सी हेयर, एक ए पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब ए पॉइंट पे फंक्शन होगा एफ ए, बी पॉइंट पे फंक्शन होगा एफ बी, राइट। अब उन दोनों के बीच में अगर कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एम, तो उस पर फंक्शन होगा एफ एम, राइट। नाउ सी वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे लाइन की जो ज्वाइन करेगी ए और बी को, राइट, ओके। देखिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो इक्वेशन फाइंड करनी आती है लाइन की। जो पॉइंट है y माइनस y1,
और y1 पॉइंट क्या है, एफ ए। फिर x माइनस x1, वो पॉइंट क्या है, ए। सिमिलरली y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन फाइंड कर ली। अब पॉइंट जो gx दे रखा है, ये देखो gx पॉइंट क्या हुआ, ये हमने fm से जो ये लाइन जा रही है ना, ये देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो hm और एक ये gx। ठीक है, नाउ hx क्या है, f ऑफ x, सी f ऑफ x माइनस g ऑफ x, पुट कर दी। अब g ऑफ x की बजाय ये वैल्यू हमने पुट कर दी जो निकाली अभी, डन। फिर f ऑफ a की वैल्यू क्या है, देखो f ऑफ a की वैल्यू 0 और h ऑफ b की वैल्यू मान लो 0, निकाली तो मतलब 0 आ गई, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यानी रोल्स थ्योरम की कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो अब कोई पॉइंट एक एग्जिस्ट करता होगा सी जो बिलोंग करता होगा ए और बी के बीच में, तो वो पॉइंट है एच डैश सी विच इज़ 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम सॉल्व करोगे तो जो हमने फाइनल निकाला है एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। इक्वेशन प्रूफ। अब देखो लास्ट दो के पार्ट है, ये आपको दे रखी है लिमिट की वैल्यू, फाइंड क्या करना है, ये 0/0 फॉर्म में है, फाइंड क्या करना है पी और क्यू की वैल्यू। सिंपली एल हॉस्पिटल रूल निकालेंगे, और जो हम इसका एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, डेरिवेटिव लिख देते हैं उसी की बजाय ना, जैसे क्यू एक्स है ना, क्यू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो अब उसी का डेरिवेटिव लिख देंगे। हमने इसका डेरिवेटिव किया ऊपर एक्स 1 प्लस पी कॉस एक्स का, और क्यू साइन एक्स का करा तो क्यू कॉस एक्स आ गया। एल हॉस्पिटल रूल से हमने लिमिट फाइंड कर ली, लिमिट जो थी वो x टेंड्स टू 0 थी। ठीक है, वैल्यू पुट करी, फिर दोबारा अप्लाई करा एल हॉस्पिटल रूल, फिर हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड कर ली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, पी की क्यू की वैल्यू आ गई, सिंपल। लास्ट देखिए फंक्शन दे रखा है, पता करना है मैक्सिमम मिनिमा, क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, फिर पुट करके देखेंगे कहाँ पर वो मैक्सिमम है, कहाँ पर वो मिनिमम है। अगर लेस देन 0 तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम। सो आई होप यू आर क्लियर। और देखो कुछ भी नहीं है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, थैंक यू गाइस।